Unacademy. Well, hello, welcome Nakshatra on an academy, Thank you, sir. and great. So, Nakshatra, first of all, congratulations on two of your achievements. Firstly, like you have, secured AIR 4 in terms of your NDA examination, and also the thing is you have scored. I'm so sorry, थोड़ा error आ रहा है, रुक जाओ यार. Your rank is 3069, right, in JE Advance, Yes, sir. correct? Okay, let us start. Hello, Nakshatra, welcome to an academy. Thank you, sir. So, Nakshatra, congratulations on two of your achievements, and these two are in fact major achievements. Firstly, you have particularly achieved AIR 4 in your NDA 12023, and secondly, you have particularly achieved 3069 rank in your JE Advance. I hope I'm right. Yes, sir. That's great. That's great. Right. So, Nakshatra, the thing is, over here, many of our viewers they face issues on major things, कि क्या करना चाहिए, जेई की प्रिपरेशन अलग से कर रहे हैं, फिर एनडीए की प्रिपरेशन अलग से कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम आपके थ्रू जानना चाहेंगे कि आपको क्या-क्या डिफिकल्टीज आई चीज़ों में, प्रिपरेशन के टाइम पे, आपको क्या-क्या इश्यूज आए आपके मोटिवेशन में. तो there's a lot to know, lot to discuss with you. Yes, ओके, sir. तो फर्स्ट स्टार्ट करते छोटी सी आपकी एक इंट्रोडक्शन के साथ कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है आर्मी की में मोटिवेशन आपका कैसे इंक्रीज हुआ है, साथ ही साथ आपने जेई मेंस एंड एडवांस भी आपने क्लियर किया है, तो Hmm. उसमें आपका किस तरीके से आपका स्ट्रेटेजी रहा है, क्या क्या चीज आपने फॉलो करी है, प्लीज ऑन टू यू नक्षत्र. Yes, sir. As of speaking of defense services, there is no one from my family who is into defense. If I join India, I would be the first person to be in defense from my family. So ऐसा कोई family से related army motivation नहीं था या pressure नहीं था कि आपको defense में जाना है. दैट्स Particularly ग्रेट. एक टाइप का सेल्फ इंटरेस्ट भी था एंड दिस सोशल मीडिया एंड यूट्यूब को देख के आर्मी से जब भी आप रिलेट करते हो तो आपको एक रिस्पेक्ट एंड ग्लोरी वाली फील आती है अंदर से. So this is one of the motivation why anyone should go towards this defense line. If you do not have that kind of patriotism, army is just not for you. You can contribute to your country in many different ways, but army requires a hell lot of patience, perseverance, and yeah, your dedication towards that. And as दैट्स of राइट. speaking, I basically from 11th class was motivated towards JE. Most of my peers started preparing for JE, and I also believe that because of my peers, I started preparing for JE, and I joined an academy in 2021 May, and ओके. throughout my that was my 11th class and 2021 2022 to 2023, from 2 whole years of my 11th and 12th I prepared only through online and academic classes, and because of that my maths became very good. I studied from Om Sharma sir, and दैट्स ग्रेट. that maths helped me in also clearing the NDA written examination as well as the JE advanced as well as the CBSE board examination. So basically, it's not that we have that two vast or different syllabus. It's almost the same concepts which can be applied anywhere. And also, I in towards JE and for that general science portion in the NDA written examination, it's not that they ask you needs to be quiz masters to do that. It's just general अंडरस्टूड. sciences, for 11th class, 10th chemistry, biology, physics. Data science student already knows if you have taken science in class 11th and 12th, and also that English portion for have you do not need much English, but some practice and some command on the basic conversation skills and basic English grammar. And for that general sciences, I believe that general, if you read newspaper,
not necessarily newspaper. Just you are aware enough through any medium, such as social media is also now a very important medium for this awareness, general awareness, and the news. They got channels and pages everywhere. Even now on WhatsApp, they have created channels for news channels. You can download apps, short apps, which through notification update you. So it is not that rocket science for general science that you have to read newspaper daily, watch 2 hours of That's news right. channels. Yes, sir, That's right. it's right. And the major part, which I see into you, that what army is also looking forward right now, the scholar warrior concept, right? So over here, like definitely you must be a scholar in terms of your not like you did not need to have very high sophisticated ranks or something like that in terms of your studies, but what all you can have is like, you know, small milestones which you have achieved in terms of your studies, and then you're preparing for your defense examinations also. So, Yes. Nakshatra, if you can tell me that, if you were in NCC also, were you been NCC, or it's just like you've Mm, directly applied for no, NDA sir. after your 12th? Nah, I Not never NCC cadet? attended any. No, sir, So, never see, attended that any. is that is the aura of this examination. It's like, person whosoever has made up his or her mind, that person will be able to crack the examination, I believe, right? It's just you Yes, sir. need to have inspiration. It's just you need to have the zeal or the josh to ensure that, okay, I need to crack this examination. I think nothing is impossible to go ahead, right? Yes, sir. So Nakshatra, one more thing, if you let know our viewers that whenever you go ahead for any preparation, right? So how have you managed your general science, or just science? So definitely, if your it's your strategy, because you have gone for your JEE mains and advanced, both the examinations. And one amazing part about Nakshatra, it's like you are already in IIT Patna, right? Yes, sir. In computer science branch. That is one of the great thing. That's right. So how have you managed your history? How have you managed your, polity and economic subjects to ensure that, okay, you are clearing your written examination for NDA? And what has been your strategy? Like in NDA, we have particularly three papers going along, right? So what has been your strategy to ensure that, okay, these are the three papers, these are the things which I need to do, these are the things which I need not to, complete them, or these are the things which I should avoid? Because I guess हर किसी को यही लगता है कि 100% का पेपर है तो पूरा का पूरा 100% का प्रिपरेशन होना चाहिए। आई थिंक वैसा नहीं है, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा है इसमें, नक्षत्र? सर बेसिकली कि 3 पेपर्स होते हैं तो मैथमेटिक्स के लिए क्या है कि 2 साल से जब पढ़ ही रहे हैं तो मैथमेटिक्स में उतना कमांड आ जाता है कि आप पेपर सॉल्व कर रहे राइट। हो। अगर मैथ्स पढ़ ली मैथ्स सब जगह इम्पोर्टेंट है एंड एज़ फॉर हिस्ट्री एंड सिविक्स इस बार का पेपर कैसा रहा था? हार्ड रहा था मैथ्स का? नहीं मैथ्स के तो ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चंस आते हैं आई थिंक 150 मिनट्स में करने को। सो उसमें से 100 क्वेश्चंस ग्रेट। लगभग बन गए थे मेरे। मतलब 20 ये नहीं कि दैट्स 100% अटेम्प्ट किया बट जो 100 क्वेश्चंस बने आई थिंक कि और उसमें से ऑलमोस्ट 90 तो ठीक ही गए होंगे। So ये भी नहीं है कि if you have to attend the 100% paper with 80% efficiency, rather attend the paper 80% paper with 100% efficiency. Cause ये इन सारे पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर देती है कि नेगेटिव हो जाती है। दैट्स अगर राइट। आप ऐसे ही मतलब चलते जाओगे इन अ रश कि इसमें ये लगा दो, इसमें ये टिक लगा दो, उससे ज़्यादा आप फोकस करके अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर नेगेटिव नहीं है तो मारते जाओ, वो नेगेटिव वाले जो जिसमें नेगेटिव मार्किंग हाँ, है। वो तो है, बट डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग तो रहेगा, तो आपको सोच समझ के मार्क करना हाँ, है कि क्या मार्क कर वही रहे हैं, क्या नहीं कर कि रहे इन अ रश आपको हैं। एंड आपकी जो इतना ब्लफ भी नहीं खेलना है कि आप कि सही होगा या नहीं होगा। नहीं जो नहीं जिसमें डाउट एलिमिनेशन का जो मेथड है उसको बहुत प्रिसाइसली यूज करना है। ऐसा नहीं कि हर जगह एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं और फिर अगर ऑप्शन नहीं भी आ रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ तो टिक करके आना है। वैसा नहीं होना चाहिए, आई गेस। यस सर। राइट। एंड एज़ फॉर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स बेसिकली उसका हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का आज तक कोई स्पेसिफिक सिलेबस बना ही नहीं है। कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा सिलेबस करके जा रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री में भी ऐसा कोई एक फैक्ट निकल के आ सकता है जो आपने ना पढ़ा हो एंड पॉलिटिक्स तो एवर गोइंग है। दैट्स राइट। सो उसके लिए क्या करना होता है मैंने मतलब कि एक बुक थी बेसिकली अरिहंत की वो मैंने 15 दिन आई थिंक मेरा ये एनडीए का रिटन का अटेम्प्ट 15th ऑफ अप्रैल 2023 में था। सो फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक। Not memorizing it, not rote learning it, I just started reading it, that book. So basically एक लॉजिक टाइप का समझ में आ जाता है अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को ऐसे फ्लो में पढ़ते हो। सो वो बहुत हेल्प किया उससे मेरे ऑलमोस्ट 100% नहीं बट मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी बन गए थे कि अब हिस्ट्री है आप उसे नाम नहीं याद करोगे ये करोगे लेकिन अगर
हल्का-सा भी मतलब लॉजिकल साइड है कि इसमें क्योंकि वो एलिमिनेशन वाला मेथड लग ही जाता है हिस्ट्री में भी, कि ऐसा लगेगा हुँ। कि ये तो किसी और एरा का था या ये इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के अंदर। हिस्ट्री में आपको फिर भी सेग्रीगेशन में थोड़ा ईज़ी होता है कि हाँ, ओके चलो ये मेडिवल का ये है, ये इसका ये एंशिएंट का है, ये मॉडर्न प्रीहिस्टोरिक का चल रहा हाँ, है, उसमें आपको सेग्रीगेशन करने में हुँ। आपको आसानी होती है। बट आई थिंक ये सेग्रीगेशन वाला केस पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के केस में नहीं होता है। इसमें आप फिर भी थोड़ा फँस जाते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का कौन-सा इवेंट किस टाइम पे हुआ है, वो थोड़ा रिलेट करना मुश्किल हो जाता है उस टाइम हाँ, पे। इकोनॉमिक्स का हो सकता है बट वही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि इस हर चीज़ ही करके जाएँ। अगर आप मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लो, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लो राइट, एंड करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग कर लो, उतने में ही आपका ऑलमोस्ट 600 मार्क्स का पेपर हो जाता है 900 में से। एंड हिस्ट्री, सिविक्स अगर आप ऊपर-ऊपर से भी पढ़ के जाओगे तो इतना टिपिकल नहीं आता है एनडीए में। यूपीएससी में तभी यूपीएससी के लेवल का नहीं आता है। वो आते ही मतलब बेसिक लेवल का आता है, तो वो बस ये चाह रहे हैं कि मतलब ऑल राउंड नॉलेज है कि नहीं है। ये नहीं कि वो आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। सो इतना टिपिकल नहीं आता राइट। मेरे हिसाब से हिस्ट्री और सिविक्स भी, तो आप अगर 15 दिन पहले से या 1 महीने पहले से जस्ट रीड करना शुरू कर दोगे, तो बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाता है। एंड वही है कि थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन्स बनेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप में, देन आप कॉन्फिडेंस से थोड़ा टिक लगा के आओगे पेपर में। दैट्स राइट। एंड फिर आपका जब एनडीए एग्ज़ाम हुआ तो फिर पेरेंट्स गए थे आपके साथ एनडीए एग्ज़ाम देने या फिर खुद ही आप गए थे? कहाँ पे दिया था आपने? आपका सेंटर मेरा कहाँ था एनडीए का? सेंटर मेरे घर से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स दूर आया था, यहीं गाज़ियाबाद में ही सेंटर था, एक कोई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज था। सो वहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था, तो वही 2 शिफ्ट में पेपर होता है फ्रॉम 10 टू 12 एंड 2 टू 4 आई बिलीव। सो 2 राइट। शिफ्ट में तो पहले तो सिर्फ़ पापा ही छोड़ने गए थे, सुबह-सुबह छोड़ के आ गए। देन फ जब 12 बजे पेपर ओवर हुआ, देन फॉर लंच मम्मी-पापा दोनों आए थे लेने कि उन्होंने फिर हम लोगों ने वहीं पास में एक जो रेस्टोरेंट था, जो भी मिला वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया। सो बेसिकली उतना हैवी नहीं एंड फिर उसके बाद फिर वो लोग छोड़ के चले गए थे, देन फिर सिर्फ़ पापा ही लेने आए थे क्योंकि बेसिकली एनडीए वाले दिन संडे था, तो पापा खाली थे। वरना ज़्यादातर होता क्या हाँ, है कि जेईई वाले दिन जैसे जेईई मेन्स का आपका किसी भी डे पे पड़ सकता है अटेम्प्ट, तो उसमें मैं अकेले ही गया था। हाँ। लेकिन जिस दिन संडे को एडवांस संडे को था एंड एनडीए संडे को था, उस दिन पापा अवेलेबल थे, तो वही लेने और लेके आए थे एंड वापस छोड़ के आए थे। हुँ, दैट्स ग्रेट। तो आपका जो ये जो मोटिवेशन रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया के थ्रू ही मोटिवेशन रहा है या फिर कुछ और भी मोटिवेशन है कि मतलब लाइफ़ में एक्शन पसंद है या फिर किस तरीके से आगे बढ़ना है, ज़्यादा डिफेंस की चीज़ें थोड़ी पसंद है हुँ। या फिर तो आपका आपका मेजर मोटिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया था या फिर किस तरीके से थी आपकी चीज़ें? सर सोशल मीडिया एंड ये जो मूवीज़ वगैरह आती हैं क्या उरी हो गई, हुँ, शेषा हो गई, तो मतलब हुँ, कि एक इंटरनल मोटिवेशन ही था। मैंने मैंने शायद बचपन में कुछ ऐसी मूवीज़ देखी थी जिससे अभी तक मैं उनसे फैंटेसाइज़ होता रहता हूँ। ऐसा कोई ओके, पर्सनैलिटी कौन-सी? मेरा कोई भी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी मोटिवेशन नहीं था टुवर्ड्स डिफेंस सर्विसेज़। बट जो न्यूज़ हुँ, आती है कि आज आर्मी मैन ने ये चीज़ अचीव की, ये फीट पे गए एंड इंडियन आर्मी इज़ ग्रोइंग एवर एंड एवर। सो उस चीज़ से जो वो अंदर से एक मोटिवेशन आती है, वही शायद रही मेरी मोटिवेशन। हाँ, बस और तो हुँ, दैट्स ग्रेट यार। तो मतलब डेफ़िनेटली मूवीज़ भी लाइफ़ चेंजिंग हो सकती हैं कभी-कभी इन दैट हाँ, केस, है ना? वरना वरना फिर हम लोग एक और आईआईटी के इंजीनियर को देख रहे होते बट आई थिंक अभी हम आपको स्टार्स में देखेंगे फिर यस। इन नियर फ्यूचर और स्ट्राइप्स में हुँ। प्रोबेबली। तो और आपका जब एसएसबी हुआ, फिर आपके एसएसबी के बारे में मेरे को तो आप थोड़ा बताइए कि जब भी आपका जो कॉल आया था फिर उसके बाद आप खुद गए, पेरेंट्स के साथ हुँ, गए और फिर किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा? विल गेट इंटू द यस। डिटेल्स। सो मेरा एसएसबी मैसूर में था, 2F एएफएसपी बोर्ड दैट इज़ और मेरा पड़ा था फ्रॉम हुँ, 3rd ऑफ जुलाई टू 8th ऑफ जुलाई। एंड हुआ कैसा था ओके, कि 18th ऑफ जून को एडवांस 2023 का रिज़ल्ट आया था एंड आई गॉट अप्रॉक्सिमेटली दैट ओके। 3000 रैंक। सो आई सेड कि तो कॉन्फिडेंस और आ गया होगा। कॉन्फिडेंस आ गया था एंड ऐसा सीन बन गया था कि अब उस समय मतलब कि जेईई एडवांस देकर ही आया था। 2 साल से जो पढ़ रहा है 11th-12th एंड जेईई एडवांस अब दे दिया है, तो मेरा माइंड बहुत फ्री हो गया था कि मेरे को लगा कि अब एनडीए में वो अच्छा, जेईई में रैंक आ ही गई है, तो अब एनडीए देने का क्या फ़ायदा? I will get somehow get into an हाँ, IIT at this rank. I filled up the counseling and then I thought कि अब क्या देने का फ़ायदा? But somehow कि I believe कि दे ही देते हैं। That kind of feeling कि nothing negative in giving the SSB examination. It would be an एंड experience. दैट इज़ आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन हुँ। एनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, Yes, है sir. ना? जो हम 15 ओएल की उसकी बात करते हैं, उसमें सबसे मेजर यही है कि आप 15 को कंबाइन कर लो, आपने पॉज़िटिव तो रहना यस ही सर, पॉज़िटिव कि इसमें कोई नेगेटिव चीज़ है नहीं है। ना? अब दे के आते हैं कि थोड़ा और एफर्ट राइट, लगेगा बट दे के आते हैं।
ये एसएसबी का भी एग्ज़ाम राइट। तो या तो फिर इससे ज़्यादा होगा तो होगा, क्या ही होगा, यस सर, करेक्ट। बट अगर जाना भी है तो उसमें अपना 100% देना है, 100%। बट उसके रिज़ल्ट हुँ, की जो ना एक्सपेक्टेशन में हम लोग इतना नहीं सोचना है। हुँ। यस सर। दैट्स राइट। तो वही हुआ था तो मैं 2nd ऑफ जुलाई को यहाँ से मेरी दिल्ली से फ्लाइट थी इंदिरा गांधी से एंड कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट मिल नहीं रही थी मैसूर की तो फ्रॉम दिल्ली आई वेंट टू चेन्नई एंड चेन्नई से फिर मैंने मैसूर की कनेक्टिंग फ्लाइट ली थी। सो मैं रात में लगभग 10 बजे ओके, पहुँचा था एंड अगले दिन सुबह शायद 5-6 बजे रिपोर्टिंग थी एसएसबी पे, 6 बजे थी। तो ओके, 6 बजे रिपोर्टिंग थी, ओके। तो वहाँ पे मैंने खुद जाके एक होट गेस्ट हाउस टाइप का देखा, रात में रुकने के लिए। वहाँ पे मैंने गेस्ट हाउस बुक किया, देन 3 ऑफ जुलाई से 8th ऑफ जुलाई तक मेरा वहाँ पे एसएसबी हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि 10th ऑफ जुलाई को ही मेरी मेडिकल्स की डेट आ गई थी, दैट इज़ इन बैंगलोर कि मेरा मेडिकल 10th ऑफ जुलाई को है बैंगलोर में। सो मैंने सोचा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है कि 8 तारीख को ही मैं फिर वापस घर जाऊँ गाज़ियाबाद एंड देन बैंगलोर के लिए हाँ, आऊँ, तो मैं वहीं बैंगलोर बैंगलोर में आपका आई थिंक उसमें हुआ होगा कमांड हाँ, हॉस्पिटल, एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल में इंडियन आपका इंस्टीट्यूट मेडिकल। ऑफ एरोस्पेस हुँ, मेडिसिन एंड कमांड हॉस्पिटल दोनों में कंबाइन था। आधे टेस्ट उधर थे, आधे हुँ, इधर थे। हुँ, है तो वही था, ओके, तो मैंने फिर वहीं मैसूर से ही अपना बस लिया एंड बैंगलोर में गया। बैंगलोर में मैं 2 दिन रुका, 8 तारीख की रात और 9 तारीख की रात वहाँ खुद जाके ही होटल बुक किया। सो बहुत लंबी सी ट्रिप हो गई थी। वहाँ पे 10 टू 14th मेरा मेडिकल्स चले, देन 15th को मैं वापस घर आया। सो अप्रॉक्सिमेटली फ्रॉम 2 जुलाई टू 15 जुलाई सब कुछ मैंने खुद ही मैनेज किया था वहाँ पे। अ अमेज़िंग। तो ऐसा और अकेले ही था और पेरेंट्स वगैरह कोई साथ में गए नहीं थे, तो 14 दिन ऐसे ही मतलब निकल गए एन्जॉयमेंट में। इंटरेस्टिंग था वो बेसिकली। बट आई थिंक वो 14 दिन वर्थ रहे यस हैं सर, एंड उन 14 दिनों में पूरा एक लाइफ़ का जो एक ट्रैक है, वो एक डायरेक्शन से कंप्लीटली दूसरा डायरेक्शन में शिफ्ट कर लिया आपने इन 14 दिनों यस में। सर। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, इट्स जस्ट लाइक कि हमें अपना हौसला रखना चाहिए, हुँ, है ना? जस्ट लाइक कि आपका जो भी प्रिपरेशन का प्लान है, जिस भी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो पूरा-पूरी जो है, उस पे फ़ोकस रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यस सर। तो आपके एसएसबी के जर्नी में तो फर्स्ट डे के स्क्रीनिंग में कितने बंदे आए थे? सर 122 रिपोर्टिंग था, 122 रिपोर्टिंग एंड आउट ऑफ दैट 44 वर हुँ, स्क्रीन्ड इन एंड 4 वर रिकमेंडेड। तो रेशियो तो काफ़ी अच्छा था। मतलब नॉर्मली अगर हम लोग दूसरी एंट्रीज़ के मुकाबले भी देखें, तो कभी-कभी किसी-किसी टेक्निकल एंट्री में तो 300-400 लोग भी चले जाते हैं। हाँ, और फिर वहाँ से जो है फिर स्क्रीन आउट और स्क्रीन इन जो है, वही आपके 35 से लेके 40 तक ही होते हैं। तो 44 वाज़ स्क्रीन इन, तो आपका जो ग्रुप था, आपका चेस नंबर क्या था सर फिर? 29, 40 आउट ऑफ हाँ, अमेज़िंग। 29 था एंड ग्रुप तो 29 को आपने किसी चीज़ से रिलेट किया अपनी लाइफ़ के? नहीं, ऐसे ही रैंडम नंबर लगा मेरे को तो 29 तो ना नॉट एक्सपेक्टेड था 29 प्राइम नंबर है अब उसमें क्या ही। हुँ, हुँ, करेक्ट, नाइस। तो और फिर उसके बाद फिर आपके ग्रुप में कितने थे? मतलब कितने ग्रुप्स में डिवाइड करे थे फिर आप लोगों को हुँ। स्क्रीनिंग के बाद? और स्क्रीनिंग में आपको पिक्चर कैसी दिखाई गई थी, स्क्रीनिंग के टाइम? स्क्रीनिंग के टाइम पे जो पिक्चर थी बेसिकली वो ऐसा था कि मतलब एक वर्कशॉप टाइप की लग रही थी एंड सो हुँ, उसमें वर्कशॉप टाइप की लग रही थी एंड उसमें 3-4 लोग ऐसे ही मतलब काम कर रहे थे कुछ टेबल पे दिस एंड दिस और इधर कुछ कपड़े-वपड़े टंगे हुए थे। तो ज़्यादातर ओके। वैसा ही सीन था तो मोस्ट ऑफ द जैसे मेरे ग्रुप में इनिशियली 15 लोग थे जो वो उसका ग्रुप डिस्कशन होता है पिक्चर का। सो हुँ, हुँ, उसमें हुँ। 15 में से ऑलमोस्ट 10 पीपल ने उसे टेलर ही बना दिया था जो कि मेन कैरेक्टर्स था या जो स्टोरी थी वो टेलर के ऊपर बना दी थी। कि अच्छा। I see these 4 characters in the picture and I believe the main character is a tailor who is doing this and this. So आई थिंक जिन्होंने ट्रेलर बनाया होगा उनको तो डेफिनिटली दे आर नॉट स्क्रीन्ड इन एट एनी पॉइंट। यस सर। बट मैंने भी मतलब ठीक है, वो ऐसा वर्कशॉप टाइप का लग रहा था। सो इंस्टेड ऑफ टेलर आई मेड हिम एन टेक्सटाइल इंजीनियर। That's दैट्स I गुड, somehow got the advice that you have to show your high level thinking. If you are going to become an दैट्स officer, राइट, you should think like an officer, not the tailor, but a textile ऑफिसर। engineer. करेक्ट, करेक्ट एंड ये आपके रोल को कहीं न कहीं मैच करता है। आपको ये आगे इंटरव्यू में भी कहीं न कहीं हेल्प तो डेफिनिटली करा ही Yes, होगा sir. कि आईआईटी में हो एंड आपने जेईई क्रैक किया तो फिर मैं मतलब एक एक सर्टेन लेवल पे एक मैच्योरिटी वाली थिंकिंग होनी चाहिए उस टाइम पे आई Yes, गेस। sir. सो दैट इज़ व्हाट यू हैड, दैट्स राइट। फिर नरेशन किसने किया फिर आपके जीडी के टाइम पे? जीडी के टाइम पे सर वही केओटिक था क्योंकि उसमें से तो क्या आधे लोग थे, आधे लोग सीरियस नहीं थे उतना एक्सपेक्टेड कि होता है वो। एसएसबी के लिए। सो हुँ, एक मतलब मैंने नहीं किया था, चेस नंबर 33 था बेसिकली उसने नरेशन किया था उस समय पहले जीडी में। ओके,
उसके बाद जब हम लोग अंदर गए, जो मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज़ थी या ग्रुप डिस्कशंस थे, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज में ऐसा अपना डिस्कस करना होता है अमंग द ग्रुप यू हैव सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस बेस्ड ऑन अ मैप और दैट बेसिक 3D मॉडल फ्रॉम देयर टू देयर यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन एंड डिवाइड योर टीम्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। उसमें हम लोगों ने डिस्कस करके देन उसका नरेशन अपने ग्रुप से मैंने दिया था एंड ओके। हाँ एंड जो भी ये ग्रुप डिस्कशंस थे उसका एक कंक्लूजन देना होता है ग्रुप डिस्कशंस का, वो मैंने अपने ग्रुप से दिए हुँ, थे। हुँ, हुँ। दैट हुँ। इज़ ग्रेट यार, दैट इज़ स्क्रीनिंग ग्रेट। में फिर उसके बाद स्क्रीनिंग में बहुत केओटिक टाइप का था कि सब लोगों ने हाथ उठा दिया कि आई विल ओह! रिप्रेजेंट तुम आई बैक्ड आउट। हुँ, दैट्स राइट। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था यस वैसे? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था। हुँ, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। तो फिर उसके बाद फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर उसके बाद आई थिंक वो जर्नी शुरू हो गया। हुँ, फिर आपका जो है 5 दिन का जो नॉर्मल प्रोसेस रहा होगा। यस सर। फिर उसमें फर्स्ट डे पे तो साइक फर्स्ट डे टेस्ट पे हुए होंगे, साइक फर्स्ट डे टेस्ट है। पे साइक टेस्ट हाँ। हुआ होगा आपका। तो साइक कैसा रहा आपका? डब्ल्यूएटी देन आपका पीपीडीटी फिर उसके बाद जो है एसआरटी हुँ। कैसा रहा फिर वैट, एसआरटी, हाँ, टैट? टैट वगैरह। सो वही टैट में तो वैसे ही था कि इमेज देख के एक ब्लरी सी इमेज दिखा के वो आपको स्टोरी लिखवाते हैं उसमें हुँ, बेसिकली एंड हुँ, अप्रॉक्सिमेटली कित टाइम देते हैं। सो उस हिसाब से एक तो आपको स्पीड मेंटेन करनी होती है एंड स्टोरी मतलब वैसे ही बनानी होती है कि अगर आपको वो लग भी रहा है कि उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर दो अपनी स्टोरी को। आपको अपनी थिंकिंग उस लेवल पे राइट। दिखानी है कि नॉट दैट कि एक चोर और पुलिस की स्टोरी बना दी रादर देन मेक इट a better story and उसमें 12 पिक्चर्स तो वैसी होती हैं and the 13 picture is a blank picture where you have to portray yourself what do you think of this blank picture so हुँ। initially 12 पिक्चर होती हैं कि 11 होती मतलब आई रिमेंबर लाइक जब हम लोगों ने दिया था तो 11 होती थी और फिर वो 12वाँ हाँ जो शायद पिक्चर वैसे है, ही होता है वो हाँ अपने को खुद 11 दिखाना पिक्चर्स होती हैं हाँ, 12th वन इज द ब्लैंक आई थिंक सो ब्लैंक पिक्चर हाँ। ही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं उस टाइम पे तो दिमाग भी ब्लैंक हो जाता है कि पूरा। आप क्या उस टाइम पे दिमाग भी ब्लैंक हो जाता है कि क्या लिखे? या तो पहले से सोच के रखो या फिर कुछ ना कुछ अच्छा जो है लास्ट की स्टोरीज़ में से कुछ अच्छा इवैल्यूएशन निकाल के फिर करो आप हम्म उसको। दैट इज़ हाउ वी गो। उसमें राइट, बेसिकली मैंने अपनी करेक्ट। स्टोरी लिख दी थी कि जैसे मैंने जेई के लिए प्रेप किया था कि ये हाँ। जेई के लिए जितना डेडिकेशन मोस्टली आपकी लाइफ़ का कोई छोटा-सा एक इंसिडेंट होता है जिसमें कि आप आपको पूरा नहीं सोचना पड़े, आप अपनी लाइफ़ का छोटा-सा इंसिडेंट बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर यस पाते सर हैं। तो वो एक चीज़ आप उसमें डेफ़िनेटली कर सकते हैं। तो मेरे को याद है मैंने अपनी स्टोरी में लिखा था कि मैंने एक चोर को पकड़ा था जो मैंने हुँ, रियल में पकड़ा था, एक टाइम पे। तो वो फिर बड़ा उसको इंटरव्यूइंग ऑफ़िसर को बड़ा अच्छा लगा तो फिर उसने मेरे को इंटरव्यू में पूछा था कि क्या सीन था मेरे को बताओ हाँ, ऐसे करके। फिर आपका इंटरव्यू कौन से डे पे हुआ? इंटरव्यू सेकंड डे पे था। सेकंड डे पे ही था। हुँ, तो इंटरव्यूज़ कैसे चल रहे थे? मतलब एक ही आईओ थे या फिर कितने आईओ थे मतलब नहीं एक ही इंटरव्यूज़ आया किस था तरीके वो से? हाँ, पर्सन एक ही आया था एंड एक ही वही बुलाया था रूम में। ओके। हाँ। और कैसा रहा? कितना मिनट चला फिर आपका इंटरव्यू? कितना ग्रिलिंग हुआ फिर? रूम में और मतलब नॉर्मल था? वही नॉर्मल तो नहीं था, वो पूरा ही मतलब एग्ज़ॉस्ट कर लेते हैं बंदे को इन दोज़ हाँ, 40 वो टू तो है। 45 मिनट्स अप्रॉक्सिमेटली चला था। सो वो हुँ, वहाँ पे वही चेक कर रहे थे पेशेंस एंड ऑल। उससे पहले ऑलमोस्ट 40 मिनट्स पहले वहाँ पे पहुँचना होता है। देयर हुँ। इज़ अ वेटिंग रूम्स बाय थ्रू दैट साइड एंड आई थिंक उसमें भी तो वो लोग आपको ऑब्ज़र्व वेटिंग करते रूम हैं। का जो माहौल है, तो उसमें क्या सोच रहे थे? हाँ। मतलब आप कुछ सोच रहे थे कि कैसा रहेगा मेरा इंटरव्यू या रिलैक्स थे? मतलब क्या आपने अंडरस्टैंडिंग बनाई थी आपकी उसमें? नहीं, वही ज़्यादा सोचना नहीं था सो मैं बस आँख कन बंद करके बैठ गया था वही चेयर पे ही। इतना आई थिंक कुछ ये मैंने ज़्यादा सोचा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि जो हो चुका हुँ, है, वो तो हो चुका है, अभी तो रिज़ल्ट डे है बिकॉज़ इंटरव्यू में हम लोग कुछ उन 5 मिनट में कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ कर नहीं हुँ, लेंगे लाइफ़ में। बट हुँ। रादर कि उस टाइम पे अगर हम लोग थोड़ा काम कंपोज़ रहें, सोचे कि हमने पहले क्या किया है, वो क्या पूछ सकता है और वो आई थिंक इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है, वो आप ही के बारे में ज़्यादा पूछते हैं आपको, हाँ, मतलब दूसरी ऐसा चीज़ों कोई से रिलेट करके। हुँ, दैट्स राइट। तो आप ही के हुँ। बारे में ज़्यादा पूछते हैं दूसरी चीज़ों से रिलेट करके कि क्या करा है, तो फिर किस टाइप का कैसा रहा आपका इंटरव्यू उस टाइम पे फिर? उस टाइम पे कुछ ऐसा 1-2 बहुत ही जगह आउट ऑफ द बॉक्स आपसे कुछ क्वेश्चन कुछ टेक्निकल क्वेश्चन्स आपसे करें? आप वैसे भी आपने जेईई मेंस एडवांस क्रैक किया हाँ, है, तो कुछ टेक्निकल टेक्निकल क्वेश्चन्स क्वेश्चन्स? उन्होंने किए तो थे बेसिकली उन्होंने वही पूछ लिया कि हाउ डज़ एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग की वर्किंग क्या होती है? सो ओके। हाँ, उसका मैंने मतलब पढ़ा भी था ऑफ कोर्स क्लास 11th में कि इट वर्क्स ऑन हुँ, द प्रिंसिपल बर्नौलीज़ प्रिंसिपल
एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि वो हल्का सा बुoyancy भी फोर्स लगता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल जो प्रेशर और उसका डिफरेंस होता है हाइट लेवल का, उस पे वो ऐसे एलिवेट करके उड़ता है। उतना आइडिया था, फिर वो और डीप में जाते रहे तो मैंने बोला सर अब इतना नॉलेज नहीं है, थ्योरेटिकली नॉलेज है, अब इतना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरे को पता नहीं है। एंड बेसिकली फर्स्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्वेश्चन किसके थे? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसके थे? आपको बोर्ड में एयरफोर्स तो के। पता चला होगा। हाँ, एयरफोर्स के थे, एयरफोर्स के ही थे। तभी थोड़ा टेक्निकल चलेगा वो, फ्लो हाँ, फ्लो में। तो थोड़ा-सा टेक्निकल बस वही मेरे को लगता है एक क्वेश्चन टेक्निकल था, बाकी तो वो जनरल आपकी सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में पूछ रहे थे कि आप उस एनवायरनमेंट में कितना इंक्विजिटिव हो, कितना इन्वॉल्व्ड हो। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड कोई आपसे कुछ कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस एज़ इन कुछ साइंस का, कुछ मैथ्स का, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? नहीं, साइंस का तो बस यही क्वेश्चन था, और तो कोई ऐसा साइंस या बिल्कुल ही टेक्निकल या ऐसा कुछ मैथ्स का कुछ अलजेब्रा कुछ नहीं पूछा गया था। ओके। और नॉर्मली फिर वो क्वेश्चन सारे आपके अराउंड ही घूमते रहे होंगे। हाँ, हाँ, अबाउट फैमिली, स्कूल लाइफ, फ्रेंड्स, टीचर्स, योरसेल्फ, लेisure टाइम एंड हाउ डू यू इन्वॉल्व, वही उसी सब के बारे में बेसिक क्वेश्चंस। करेक्ट। आई थिंक हुँ, आपका जो पीवाईक्यू, सॉरी, पीआईक्यू जो फॉर्म होता है, पर्सनल हुँ, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर, वो हुँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, है ना? तो यस सर। पीआईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड जो आपसे स्क्रीनिंग डे पे आई थिंक फिल करवा लेते हैं वो। हुँ, और फिर उसी के इर्द-गिर्द जो है मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ गोज़ अराउंड पीआईक्यू ओनली। दैट्स interview राइट। that mostly goes around PIQ and PIQ and some of the certificates, if you have brought your certificates to करेक्ट, verify what you have written in PYQ, that also leaves an impression. दैट्स राइट। Uh, सो PIQ में बेसिकली वही सब भरना होता है कि योर इंटरेस्ट, योर स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, योर एकेडमिक अचीवमेंट्स इफ एनी, एंड फ्रॉम वेयर you have completed your matriculation from and your class 12th and your schooling and or they tell you to fill about your family members, how many family members, younger राइट, brothers and sisters, what they are doing, how from where they have completed their education, and that is uh, दैट इज़ uh, राइट, दैट इज़ अमेजिंग। इतना सब। सो ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ आप मेरे को बताइए नक्षत्र, फिर आपका जीटीओ हुआ होगा। फिर हम्म। जीटीओ में किस तरीके से, जीटीओ तो आई थिंक वो मेजरली थोड़ा फन एक्टिविटी होता है, और आप काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें करते हैं, ज़्यादा ओपन अप होते हैं आप अपने ग्रुप के साथ। बिकॉज़ आई हाँ, थिंक जीटीओ का मेजर जो रोल है वो यही है, दैट हाउ मच यू आर जेलिंग विद द ग्रुप, एंड हाउ मच यू आर डूइंग विद द पुटिंग अप योर लीडरशिप स्किल्स इन। तो जिसने आईओ टास्क हुए होंगे, तो फिर कैसा रहा आपका जीटीओ वगैरह, कैसा रहा फिर? जीटीओ मतलब वही है कि आप जाओगे तो आपकी जो डॉम होगी वो भी आपके ग्रुप के साथ ही मिलेगी, तो बेसिकली हुँ, आपको डे 1 टू डे 5 अपने ग्रुप के साथ ही रहना है, एंड डे 3 से मेरा जीटीओ शुरू हुआ था। हुँ, सो उसमें क्या है, अगर आप पहले से ही मतलब थोड़ा-सा अपने ग्रुप के लोगों के साथ ही इन्वॉल्व्ड होगे, इंटरैक्ट करोगे, तो वो थोड़ा हेल्प करता ही है इन ग्रुप ग्रुप हेल्प डिस्कशन। करता आप सामने वाले की पर्सनैलिटी जान जाते हो हल्का-फुल्का, कि ग्रुप है। दैट्स राइट। डिस्कशंस में अगर वो पॉइंट रख रहा है तो किस वे में रख रहा है, या उसे कैसे काउंटर करना चाहिए कि वो इस पे ऑफेंड होगा कि नहीं होगा। दैट यू शुड गेट एन आइडिया, और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज में कि आपको पता चल जाता है कौन कितना लॉजिकल सोच रहा है। उसके हुँ, बाद हुँ, आता है आपका वही प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क। सो हुँ, उसमें बेसिकली कुछ लोग जो थे वो लोग कोचिंग करके भी आए होते हैं। दे हैड एन आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स हुँ, दे हुँ, पुट अप इन दिस प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। सो हुँ, still without thinking they believe that they have come prepared, and go forward with that rope, log हुँ, and that plank. They put up, they tie the rope, and they believe that it's done, but ऐसा नहीं था। मतलब कुछ लोग बस यही बिना किसी मतलब प्रायर थिंकिंग के आगे जाके उन्होंने बस प्लैंक रखा, एंड हुँ, दे इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी जितना वो लोग सोच रहे थे। तो जितना करेक्ट। भी आपने प्रिपेयर किया हो, तो अच्छा यही होता है कि एक बार फिर से रीथिंक कर लो उस बारे में। तो केओटिक था, सबसे ज़्यादा केओटिक तो पीजीटी था, और हम लोग मतलब हमारा ग्रुप मोर देन 2 स्टेजेस तो हुँ, पार कर ही नहीं पाया था, जो 4 स्टेजेस होती हैं उसमें। और ओके। उसमें भी जीटीओ ने बहुत सारे हमें वो क्या लिबर्टी दी थी कि आप अब ग्राउंड से जा सकते हो, या आप जाके वहाँ हुँ, हुँ, जाके हुँ। अब आप बैक आ हाँ, सकते हो। उसमें वो लिबर्टी देते हैं, उसमें ऑप्शंस देते हैं कि अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप उस तरीके से करिए।
हाँ, दैट्स तो राइट। वो बहुत केओटिक था तो मैं उतना इन्वॉल्व नहीं हुआ फिर उसमें क्योंकि केओस बढ़ाने से कोई फ़ायदा था नहीं, मैं बस पीछे रह के इनपुट्स दे रहा था। अब जो लोग राइट। आगे मतलब प्लैंक नहीं दे रहे हैं, जो लोग रोप नहीं पास कर रहे हैं, फिर उनसे आप क्या ही बोलोगे? सो मैंने बस उनसे बस अपने ओपिनियंस दे रहा था, अब ये नहीं कि जाके छीन ही लूँ, तो मैंने कहा अगर मेरी बात सुननी है तो सुन लो, वरना फिर जीटीओ तो सुन ही रहा है कि कौन कितना अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा है उसके अंदर। हुँ, हुँ। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपना जो है मेंटल इनपुट बहुत ज़्यादा दें और साथ-साथ में हाँ, फिज़िकल थोड़ा बहुत तो इनपुट रहे ही आपका। हाँ। और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस कैसा रहा? ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस भी मतलब वो तो एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग था मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ, उसमें तो तो मतलब सब लोग वॉर हाँ, क्राई क्या चूज़ करने के लिए कहा था आप लोगों को? वॉर क्राई कुछ भी अपना चूज़ कर सकते हैं, हमने जय हिंद, जय भारत ही चूज़ किया था, सिंपल। ओके, हाँ, ओके, वो कह रहे ओके। थे कि अपना जो भी आपको एक वॉर क्राई रखना है आप रख सकते हो, तो वो स्नेक के साथ आपको स्नेक रेस भी बोलते हैं हाँ, बेसिकली उसे, ग्रुप हाँ, ऑब्स्टिकल हाँ। रेस को। सो उसमें ही सबसे ज़्यादा मज़ा आया, उसमें सब लोग मतलब प्रॉपर्ली इन्वॉल्व थे क्योंकि उन्हें क्लैरिटी था कि इसी एक ही मेथड से सॉल्व होना है एंड वही तो सब लोग उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, तो ग्रुप रेस हमारा हो गया था, इतना टिपिकल हुँ, नहीं हुआ था। हुँ। एंड फिर उसके बाद आई थिंक आपका जो है इंडिविजुअल टास्क भी हुआ होगा, हाँ, आईओ इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। हुँ। तो वहाँ पे फिर आपने 10 में से कितने करे? मतलब पूरे इंडिविजुअल करे थे ऑब्स्टिकल आपने या में फिर हाँ, मतलब 7 ही करे थे मैंने, ज़्यादा नहीं करे थे। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ओके। इतना अच्छा नहीं गया था। तो कौन-सा मिस हुआ था फिर आपका उसमें? एक तो 10 पॉइंटर वाला था जिसमें रॉक क्लाइंबिंग होता है। बाकी हुँ, 9 हुँ, पॉइंटर मेरा टाइगर लीप था। उसमें आपको चढ़ के देन रॉक क्लाइंब करके क्लाइंब डाउन करना होता है, वो हो हुँ, गया हुँ, था। हुँ। 8 वाला शायद मंकी क्रॉल था, वो भी हो गया था। मेरा 7 एक वो छूटा था, एक टायर टंगा हुआ था बेसिकली आपको जंप करके टायर उस के टायर अंदर। में से क्रॉस करना है, तो वो मतलब हाँ, टायर ट्राई किया था मैंने बट वो बहुत ही अनस्टेबल सा था, तो हो नहीं पाया। एक वो छूटा था, एक ओके, रॉक क्लाइंबिंग छूटा था और एक शायद मेरा 1 पॉइंटर वाला छूट गया था गलती से, जो सबसे सिंपल था। उसमें आपको रैंप पे अच्छा, बस वॉक करके वो गलती से छूट गया था, वो इतना मैटर भी नहीं करता, 1 ही पॉइंट का था। बाकी मेरा बर्मा ब्रिज एंड वॉल क्लाइंबिंग और टाइगर लीप और ये सब जितने भी छोटे-मोटे थे कि बैलेंसिंग बीम्स ये सारे कर लिए थे। ओके, दैट्स ग्रेट हुँ, यार, कूल। तो फिर यहाँ पे फिर जीटीओ का जीटीओ का कैसा एक्सपीरियंस था आपका फिर वो भी होगा लेक्चरेट में या फिर हुँ। किस-किस चीज़ों में? फिर लेक्चरेट में क्या टॉपिक चूज़ करा था आपने? करंट अफेयर्स का कितना मैटर रहता है वैसे? आपके अभी मतलब जो अब एसएसबी देने जा रहे हैं, तो फिर करंट अफेयर हाउ मच डज़ इट मैटर? और आई थिंक लेक्चरेट में थोड़ा बहुत तो फिर भी मैटर करता होगा, तो लेक्चरेट कैसा रहा? करंट अफेयर्स में हाँ, क्या सीन था? लेक्चरेट में एंड ग्रुप डिस्कशन लोग सोचते हैं कि मतलब अब होगा तो वो बिल्कुल ही करंट टॉपिक दे देंगे आपको, बट हुँ, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छे हैं, तो आप वो फैक्ट सामने रख सकते हो, जो भी टॉपिक आपके पास आएगा। दैट विल गिव यू एन हुँ, हुँ, एडवांटेज, बट दैट इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉट नेसेसरी। इवन दो you have not much knowledge about current affairs and you have good speaking skills and good हुँ, adaptability to your environment, you can easily tackle these lecturate and group discussions without having much knowledge about current affairs. तो मेरा टॉपिक आई बिलीव डीमोनेटाइजेशन था। ओह अब नाइस! अगर हाँ, करंट अफेयर्स नहीं भी आते तो डीमोनेटाइजेशन के बारे में उसके आपको बारे में इतनी कुछ ना बेसिक कुछ तो आप नॉलेज 3 मिनट तो आप बोल ही पाओगे कि उसमें क्या बोलोगे। पॉज़िटिव थे, लोगों को क्या हुँ, फ़र्क पड़ा, हाँ। लोगों के पास एटीएम में इतनी लंबी लाइन लग रही थी हुँ, और वही तो। पॉज़िटिविटी ये थी कि थोड़ा बहुत ब्लैक मनी कम हुआ होगा। हाँ, ठीक है। ये वही तो इतना बोलना तो इतना तो तो 3 कुछ मिनट आराम लेक्चरेट से में बोल 4 टॉपिक्स आए होंगे आपको मतलब कुछ ऑप्शंस मिले होंगे, तो फिर उसमें क्या-क्या ऑप्शंस थे? के ऑप्शंस मतलब उसमें ऐसा रहता है कि खैर वो 1-2 वैसे भी होता है कि वो याद रह नहीं पाता है, हाँ, दैट्स याद रह ऑल्सो नहीं ट्रू पाता बट जनरली क्योंकि उस ऐसा ही टाइम पे फिर होता हम है। लोग यही फ़ोकस कर रहे होते हैं कि यही टॉपिक है, इसी पे फ़ोकस करिए और फिर लेक्चर के बाद भी 3 टॉपिक और याद नहीं रहते हैं। अगर कोई हुँ, पूछ भी लेता है कि 4 टॉपिक में थे, उसमें 4 टॉपिक क्या-क्या थे, वो तब भी नहीं भूल पाते हम लोग। यस इस सर, तरीके से बिल्कुल। जाता है वो। हाँ, अभी याद नहीं है इतना जेन्युइनली। हुँ, नो, नो, दैट आई अंडरस्टैंड हुँ। वो हर किसी के साथ यही होता है कि क्योंकि हम लोग वो करते हैं ना उस टाइम पे इतना फ़ोकस हो जाते हैं और फिर उस टॉपिक को देते हैं। तो आपका लेक्चर जो है वो कैसा रहा था? और एज़ कम्पेयर टू अदर्स एट दैट टाइम? लेक्चरेट में यही करना होता है बेसिकली कि आप अगर एक फ्लो में हो, तो वो फ्लो नहीं हुँ, तोड़ना होता है, कुछ ना कुछ बोलते ही जाओ। हैं? हुँ, तो वही कि मतलब कुछ लोग मतलब पॉज़ हो जा रहे थे एंड अगर आप एक बार पॉज़ हुए देन यू लूज़ कॉन्फिडेंस एंड यू गो ब्लैंक। हुँ, कुछ लोग 1.5 मिनट के दैट्स बाद, 2 मिनट के बाद, इवन दो 2.5 मिनट के बाद, आधा सेकंड वो ब्लैंक खड़े हैं सामने लेक्चर। सो हुँ, बेसिक ये है कि आपको मतलब कुछ ना कुछ बोलना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक बार अपना सेंटेंस रिपीट कर सकते हो, लेकिन वो आपको फ्लो नहीं तोड़ना चाहिए कि जब तक आपका हुँ, थॉट आ रहा है दिमाग में तो कुछ ना कुछ बोल दो।
क्योंकि अगर आप ब्लैंक खड़े बहुत हो जाओगे, इम्पोर्टेंट है। देन आप सबके सामने फेसेस देखोगे, जीटीओ को देखोगे, फिर आप और ब्लैंक हो जाओगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़। हुँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपना फ्लो अगर टूट जाता है तो फिर आप उसी टाइम पे फिर आपकी जो आगे की जो थिंकिंग है वहीं पे पॉज़ हो जाती है। हुँ, एंड द यस। मोमेंट्स इट्स पॉज़्ड फिर वो पॉज़ होने के बाद फिर लोग ये सोचते हैं कि आगे के 2 मिनट में क्या बोलें? हाँ, और फिर वो घड़ी का जो काँटा है वो आपका फिर हुँ। इट गोज़ इंटो द रिवर्सल हाँ, डायरेक्शन, फिर फिर वो उल्टी गिनती टॉपिक के चल रही बारे में होती है। नहीं सोचते हैं, फिर वो कुछ और अलग ही सोचने लगते हैं कि अब होगा क्या बेसिकली। और कमांड टास्क में क्या दिया था? मतलब मेजरली लोगों को ये एक बच्चों को या फिर एस्पिरेंट्स को ये रहता है कि कमांड टास्क में जिसको बॉम्ब वाला टास्क दे दिया वो बहुत हाँ, अमेजिंग होने वाला है या फिर बॉम्ब डिफ्यूज़ल वाला टास्क बहुत अमेजिंग होता है। तो फिर कमांड टास्क में क्या सीन था? कमांड मेरा टास्क कैसा कमांड रहा? टास्क में वैसा ही था, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह, स्टार्ट टू फिनिश लाइन, ऑब्स्टिकल्स यू हुँ, हैव टू क्लियर ऑल विद योर इफ यू हुँ, चूज़ सबऑर्डिनेट्स एंड विद द 3 हेल्पिंग आइटम्स दैट यू हैव गॉट। एंड हुँ, एक और उसमें एक वो बॉम्ब टाइप का ही दिया था, बेसिकली एक बकेट दी थी। दे सेड यू बिलीव दैट दिस इज बॉम्ब एंड यू हैव टू क्रॉस दिस फ्रॉम स्टार्ट लाइन टू फिनिश लाइन। डिफ्यूजन अंडरस्टूड। नहीं था, कुछ होता है बॉम्ब रिट्रीवल वाले टास्क होते हैं, उसमें आपको जाके देन वापस आना पड़ता है। मेरा बस एक स्ट्रीमलाइन था, वन वे था कि मेरे को बस ये क्रॉस करना है। तो मैंने अंडरस्टूड। ईज़िली क्रॉस कर लिया था, 15 मिनट्स का कमांड टास्क था, अप्रॉक्सिमेटली मैंने 8 या 9 मिनट्स में कमांड टास्क कंप्लीट हो गया था मेरा। उसमें तो उन्होंने फिर कैंटिलीवर्स और घुमाया नहीं उसको कि इधर से हाँ, जाओ, उधर फिर से जाओ? उन्होंने वही तो उन्होंने फिर घुमाया ही उसे एंड मैंने सेम टास्क को करने के उन्हें 2-3 मेथड्स बता दिए थे, कि अगर आप हुँ, यहाँ से नहीं करोगे तो आप इसको बेस बना के इसको ऊपर कर सकते हो, यहाँ पे प्लैंक रख सकते हो या नीचे आप रोप बाँध के उसे बेस कर सकते हो। तो वो राइट। सब चीज़ें उन्होंने मतलब अल्टरेशंस उन्होंने किए थे उसमें। राइट, क्योंकि ऑल्टरेशन वो देखते ही हैं कि अगर आपने इतना जल्दी कर दिया फिर उसके बाद वो ऑल्टरेशंस पूछते ही हैं कि यार आप हाँ, बताओ इसका दूसरा आंसर क्या होगा? कभी-कभी मतलब टू गेट कि टू एन आइडिया बिलीव कि आपका दैट दिमाग हाँ, और कितने डायरेक्शन इज़ जस्ट नॉट यूनिडायरेक्शनल, इट शुड गो इन मल्टी डायरेक्शनल कि एक तुरंत बंद हो गया तो फिर क्या करें? देयर शुड ऑलवेज़ बी अ प्लान बी वाला सीन है। या यस सर। और ग्रेट, बाकी ग्रेट। कमांड टास्क में वो आपको चूज़ भी करने को बोलते हैं कि आप अपने ही ग्रुप में से कोई किसी भी 2 सबॉर्डिनेट्स सबऑर्डिनेट्स को को चूज़ करिए। तो सो आपको कितनी बार चूज़ करा गया फिर? हाँ, या ऐज़ फिर अ आपने किसको सबऑर्डिनेट भी चूज़ किया? मैं ऑलमोस्ट नॉ मेरे ग्रुप में 9 लोग थे, तो ऐज़ अ हुँ, हुँ, सबऑर्डिनेट भी मेरे को 4 टू 5 टाइम्स चूज़ किया गया। दैट्स ग्रेट। हाँ, वैसे दैट्स इसमें वन 2 चीज़ें होती हैं, अगर जो सबॉर्डिनेट चूज़ करते हैं तो वही जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया हुँ, कि ग्रुप के साथ वो ज्वेलिंग या फिर वो अच्छा बिहेवियर ज़रूरी है। अब हाँ, वो अच्छा बिहेवियर वो जेनुइनली अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, उसको आप वो मेंटालिटी आप जो है चेंज नहीं कर सकते हो। हुँ, आपका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, जेनुइन हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, उसको वो मेंटालिटी, वो माइंडसेट जो है आप तुरंत हुँ, 2-3 दिन में आप चेंज नहीं कर सकते हो हाँ, और या मतलब फिर तुरंत ग्रुप देख के आप चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों का वैसा पता चल जाता है कि ये लोग मतलब इन अ टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ले रहे हैं या वैसा ले रहे हैं। मैं तो फ्री माइंड गया था हुँ। ये एसएसबी देने, तो मैंने तो जेनुइनली मतलब उनसे ऐसी तो आपसे जेनुइन आपसे ये फ्रेंडशिप पूछा नहीं गया कि आप आपने ऑलरेडी जेईई एडवांस क्रैक किया है, 3069 आपकी रैंक आई है हुँ, और फिर वहाँ पे आप ऑलरेडी आईआईटी पटना में, देन व्हाई आर्मी? हाँ सर, उस और समय मैंने आर्मी, नेवी जॉइन और एयरफोर्स, व्हाई हाँ। सीडीएस? कि जस्ट बिकॉज़ उस समय क्या था ना, उस समय इन द जुलाई मैंने हुँ, सिर्फ़ जेईई एडवांस क्लियर किया था। उस समय मेरी काउंसलिंग भी फिनिश नहीं हुई थी कि मेरे को कौन-सी ब्रांच एंड कौन-सा कॉलेज मिल रहा है, दैट वाज़ नॉट डिसाइडेड एट दैट टाइम। अंडरस्टूड। इट वाज़ डिसाइडेड इन ऑगस्ट व्हेन आई कंप्लीटेड माय एसएसबी। सो उस टाइम पे बस मैंने उन्हें बस ये बोला था कि आई ट्राइड टू गिव दिस जेईई एग्ज़ामिनेशन एंड आई गॉट दिस रैंक। अब इससे तो उन्होंने इतना स्पेसिफिक नहीं पूछा कि आपने जॉइन कर लिया, अब इधर क्यों आना है? तो मैंने बोला कि वो राइट, सर एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट हो गया है। आई वाज़ इंक्विजिटिव टू नो माय लेवल ऑन एन ऑल इंडिया लेवल, सो आई gave many exams. I also gave CUET. I gave this NDA and I gave JEE. So to check my worth on an national level examination. So because of that I gave JEE and in this for NDA I was also serious enough. So I also came to give this NDA examination. दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ ग्रेट। एंड आल्सो फिर आपने फिर एनडीए अपने एनडीए तो आपने इसके साथ क्लियर किया विदाउट एनी गोइंग अहेड, आपने पूरा-पूरा सेल्फ स्टडी लगाया एंड Hmm. उसके साथ-साथ फिर आपका जो है एसएसबी के लिए फिर आपने कुछ कोचिंग वगैरह कुछ ली थी क्या? एसएसबी के लिए कोचिंग एज़ सच तो नहीं ली थी, बट जो 1-2 लोग थे मैंने उस समय थोड़ा रिसर्च किया एंड एक जो लोग जो पहले एसएसबी दे के आ चुके हैं, उनसे एडवाइस ली थी कि कैसे करना चाहिए एंड कैसे नहीं करना चाहिए। और बेसिकली यूट्यूब पे तो अब सारा रिसोर्सेज़ अवेलेबल है। दे गिव यू हुँ, मतलब हुँ। प्री माइंडसेट कि ऐसे-ऐसे चीज़ें होने वाली हैं।
तो उसके लिए आप ओके। थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हो कि लेक्चरेट के लिए आप थोड़ा मतलब कुछ टॉपिक्स पे बोलने का प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ जनरल टॉपिक्स आते ही हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन एक जनरल टॉपिक है एंड हुँ। जेंडर इनइक्वालिटी हो गया एंड सती प्रथा, रिजर्वेशन सिस्टम, कास्ट सिस्टम और जेंडर इक्वालिटी और वही दहेज सिस्टम, डाउरी सिस्टम, ग्राम पंचायत, ये सब कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो मतलब बहुत हाई चांसेस है इनका आने का। तो वैसे टॉपिक्स प्रिपेयर करके गया था मैं कि उस पे इतना थोड़ा-सा तो नॉलेज आपने एक होना सेट ऑफ चाहिए। करंट अफेयर्स बनाया था जिसको आपने हुँ, प्रॉपर्ली उसमें जो है आपने प्रिपेयर हुँ, करा एंड देन फिर हुँ। और उसके बाद जो है आपके जीटीओ के बाद जो मेजर जो डे होता है और आपका स्टे वगैरह कैसा था? जो नॉर्मली हर हर टाइम पे आपके कॉन्फ्रेंस के टाइम पे पूछा जाता है कि आपका स्टे कैसा था, खाना स्टे कैसा कैसा था था? एंड हाउ इज़ द कैंपस? उसके बारे में। आई थिंक कैंपस देख के लोगों को आधी मोटिवेशन तो वहीं पे आ जाती है। अगर कोई हाँ, मोटिवेटेड गया भी नहीं कैंपस होगा, हुँ। कैंपस देख के मोटिवेशन आ जाता है। नहीं, बहुत पीसफुल कैंपस था, हर जगह ग्रीनरी थी एंड ऐसा लग रहा था कि मतलब कि कॉर्पोरेट लाइफ से ये तो बिल्कुल अलग ही वर्ल्ड है कि व्हेन यू गो इनटू डिफेंस इट्स जस्ट एन अनदर डिफरेंट वर्ल्ड एंड अनदर डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट्स जस्ट तो नॉट अ जॉब। मतलब हाँ। वो बिल्कुल अलग ही है, आपका अंदर ही कैंपस के अंदर ही आपको सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मेस है, कैंटीन है, इनसाइड दैट ओनली सो आपको मतलब किसी रिसोर्सेज़ की कमी ही नहीं है। You do not have to go into the that weekly markets or that local markets to buy vegetables and fruits. You everything ओके। is just there with you. You got your own parkings, cars, and most probably servants also. So there is हुँ। nothing that drastic about living in an अपने में army एक अलग ही quarters. दुनिया है वो। Hmm. अपने में एक कंप्लीट Hmm. सारी फैसिलिटीज़ के साथ है दैट इज़ राइट। फिर Hmm. आपका जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो कॉन्फ्रेंस में कैसा माहौल था? मतलब कैसा था कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस और किस तरीके से थी चीज़ें वहाँ पे? कॉन्फ्रेंस में वही सब लोगों को चेस नंबर वाइज़ बुला रहे थे, हम लोगों को एक ही रूम में कर दिया था, जिस रूम में हमारा वो इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ था, हमारी ब्रीफिंग हुई थी, उसी रूम में हम हुँ, लोगों को बैठा दिया एंड एक-एक करके कॉन्फ्रेंस रूम में बुला रहे थे। सो चेस नंबर 29 था तो थोड़ा एंग्ज़ियस हो ही गया मतलब एंड तक आते-आते कि अब तो 1.5 घंटा हो गया, अब तो 2 घंटा हो गया, मतलब वो बहुत स्लोली बुला रहे थे। दे आर मतलब ओके। हर बंदे पे एप्रोक्सिमेटली 2 एंड अ हाफ मिनट्स लगा ही रहे थे। तो जब भी 20 बंदे हुँ, भी गए तो लगभग 2 घंटे हो गए थे और मेरा थोड़ा एंड में था, तो बैठे-बैठे मतलब फिर वही थोड़ा अनरेस्ट टाइप का होने लगा कि एक्चुअली में अंदर हो क्या रहा है? कि ऐसा हुँ। क्या पूछ रहे हैं वो लोग? तो बेसिकली आपको उन्होंने वहाँ पे ऐसा एक एनसीओ तो होते ही हैं, वो आपको ब्रीफ करते हैं कि ये करना है, यहाँ पे बेल हुँ, बजेगा, वहाँ पे हाँ, वो आपकी ऐसे रिंग यहाँ बजेगी, से ऊपर नंबर चेस्ट नंबर दिखेगा, वैसे आना है। वो हाँ, हॉस्पिटल वैसे के ऑपरेशन के थिएटर के जैसा रेड हाँ, लाइट, हाँ। येलो लाइट और ग्रीन लाइट जलती रहती है आपके। यस सर, वो दैट्स उन्होंने राइट। ब्रीफ किया था कि यहाँ पे साउंड आएगी, यहाँ पे आपका चेस्ट नंबर आएगा, जब आएगा तो आपको उठ के हाँ, इधर से इस रूट से इस रूम में जाना है। हाँ। तो वो है, फिर उस रूम में वो अच्छा और एक हॉल में एक अलग ही माहौल रहता है, मतलब आपके जूते की आवाज़ आती है फिर आप जा रहे हो वहाँ पे हाँ धीरे-धीरे, जी, माहौल ही वैसा वो होता है उस टाइम बिल्कुल पे। हॉलवे टाइप का होता है जब आप नॉक करके अंदर घुसते हो यूसी उसके उससे पहले होता क्या है कि जितने भी जीटीओज़ होते हैं या इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं वो मतलब कैजुअल्स में ही रहते हैं इधर कोट कैजुअल्स में सूट रहते हैं। और ट्रैक सूट्स और जैकेट्स बट व्हेन यू एंटर इनटू अ कॉन्फ्रेंस रूम यू सी a room full of 15 to 20 people with full of that their उसमें से आपने uniforms. सिर्फ़ 3 लोगों को देखे होंगे या तो जीटीओ में 2 एक्स्ट्रा जो और जीटीओ को देखे होंगे दूसरे ग्रुप हाँ, के। बाकी तो 2 पता नहीं मतलब आपको साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हाँ। वो सारे के सारे एकदम अप्रॉक्सिमेटली नए शायद फेसेस होते हैं। 5 इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स थे, 3-4 हुँ, साइकोलॉजिस्ट थे एंड 5 हमारे 5 ग्रुप ही बने थे ना, तो 5 जीटीओ भी थे। तो 15 हुँ, लोग तो हो ही गए अप्रॉक्सिमेटली एंड जो एक एसएसबी बोर्ड का हेड होता है, वो सेंटर में बैठा था विद द इंडियन फ्लैग इन हिज हैंड एंड ही आस्क्ड द क्वेश्चन्स। हुँ, ओके। तो आपने फिर कमांडेंट को आंसर करा पूरा। हाँ। ओके एंड फिर वहाँ पे फिर आपसे क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे? कितने मिनट का रहा? क्या एग्ज़ैक्टली कैसा रहा? मेरा वही वाज़ वही सिंपल क्वेश्चन दैट हाउ वाज़ योर स्टे इन दिस कैंपस एंड होता क्या था कि जब आपका मोस्ट प्रोबेबली अप्रॉक्सिमेटली 2 पीएम तक सारे ये जो टास्क एंड टेस्ट होते थे खत्म हो जाते थे। 2 पीएम के बाद आप हुँ, एवरीडे फ्री होते थे। तो उन्हें भी पता है कि ज़्यादातर लोग वहाँ बेस से बाहर जाके मैसूर विज़िट करते थे। मैसूर में भी हुँ, जैसे हुँ, मैसूर पैलेस है, ज़ू है, एक्वेरियम है। आस-पास एक हुँ, वो ट्रैकिंग साइट भी थी। तो वहाँ पे गए थे तो उन्होंने वही पूछा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आस-पास कहाँ-कहाँ घूमने गए? अगर गए तो कहाँ-कहाँ गए? अगर नहीं गए तो क्यों नहीं गए घूमने? कि आपके पास तो अपॉर्च्युनिटी थी और एक चीज़ उन्होंने ये पूछी थी लास्ट क्वेश्चन 3 ही क्वेश्चन पूछे थे
लास्ट क्वेश्चन ये हुँ, था कि इफ यू वांट टू ऐड समथिंग और इफ यू वांट टू ऐड एनी इम्प्रूवमेंट टू दिस एसएसबी प्रोसेस, व्हाट वुड यू एनी सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट? so what did you say? मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं था कुछ बोलना, तो मैंने कहा कि आई डू नॉट बिलीव एनी चेंजेस, स्टे भी बढ़िया था मेरा एंड पूरी प्रोसेस हुँ, को भी एन्जॉय किया। तो ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट लगा नहीं एंड वो इम्प्रूवमेंट को एज़ सच क्रिटिसिज़्म भी ले सकते थे। तो मैंने ऐसा हुँ। कुछ अपना इनपुट दिया नहीं हाँ, उसमें। डेफिनिटली बिकॉज़ एसएसबी इज़ समथिंग व्हिच इज़ आई थिंक हुँ, 70s से चल रहा है वो एंड हुँ। उसमें फिर हम लोग कौन होते हैं उसको नया इम्प्रोवाइज़ेशन देने में बिकॉज़ ऑलरेडी देयर आर अ लॉट ऑफ माइंड्स इन इट to यस ensure सर। that Indian Army, Navy, and Air Force and Coast Guard they are getting like the best of the men to lead them, right? तो वो तो एक डेफिनेट चीज़ है कि उसमें और क्या चेंजेस हम लोग करें यस सर। और आई थिंक उस पोजीशन में है भी नहीं कि चेंज करवाएं सो आई थिंक इट्स जस्ट लाइक कि आप बताइए उनको कि ऐसा कोई चेंजेस नहीं है एंड इट इज बीन अमेजिंग एक्सपीरियंस राइट दैट इज हाउ इट इज सो ओवरऑल इट हैज बीन ग्रेट नाउ फिर उसके बाद फिर मेडिकल्स में आपके जो है सारी की सारी तो मेडिकल कितने दिन का रहा आपका 4 दिन का 5 दिन का 4 दिन का ही था बेसिकली। फ्रॉम 10th टू 13th ऑलमोस्ट एंड 14th की मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे। तो आई तो थिंक आप यहीं पे रुके होंगे फिर मतलब बैंगलोर सर्विस सिलेक्शन सेंटर साउथ में आप रुके होंगे बैंगलोर में हाँ, बैंगलोर हाँ, वाला जो हाँ। एसएसबी सेंटर है फिर आप लोग को वहां लेकिन पे रुकवाया हाँ, होगा वहाँ पे भी वो जो हमारा अकोमोडेशन था वो 10th ऑफ जुलाई से अवेल हो रहा था। तो हम्म 8 ऑफ जुलाई और 9th ऑफ जुलाई को मेरे को होटल लेके ही वहाँ पे रहना होटल पड़ा। लेके रहना था हाँ। ओके ओके और फिर जो है आपका आई थिंक एक तो आपको टी अलाउंस भी मिला होगा कि हुँ, ये टीए टी भी मिला। अलाउंस है तो वो अभी हाँ, पहले क्या होता था पहले तो कैश में देते थे वो लोग या तो फिर कभी बैंक अकाउंट में फिर अभी बैंक रिसेंटली आई अकाउंट। थिंक बैंक हुँ। अकाउंट में ट्रांसफर होने लगे हैं राइट तो आपका जो अभी जितने आपके रिकमेंडेशन थे आपके आपके ग्रुप में कितने रिकमेंडेशन हुए और फिर आपके पूरे बोर्ड में कितने रिकमेंडेशन हुए थे आपके मेरे ग्रुप आप ग्रुप में सिंगल थे से जो 9 लोगों का ग्रुप में था उसमें से 2 लोग रिकमेंड हुए एंड अमेजिंग ओवरऑल पूरे बोर्ड से हमारा जो बैच था उसमें से 4 लोग रिकमेंड हुए थे सर। तो दो आपके ग्रुप से हुए और दो बाकी दूसरे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हाँ, के हुए डिफरेंट ग्रुप से थे। उनकी परफॉर्मेंस दैट्स ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं। हाँ। हम्म तो आपके साथ भी जो रिकमेंड होते उनका उनका पर्टिकुलरली कैसा रहा मतलब आप जो दोनों जो रिकमेंड हुए थे तो कैसा था आप दोनों का वो मतलब वो कॉम्बिनेशन जो पर्सन था वो कोचिंग लेकर आया था बेसिकली यहीं दिल्ली में कोई कोचिंग ओके थी। तो वो कोचिंग ओके लेकर आया था तो उसे एक बेसिक इंटरव्यू था उसके वो अपने साथ बुक्स भी लाया था एंड ही यूज्ड टू रीड अबाउट दैट जनरल अफेयर्स बेसिकली कि आज जीडी हम्म होने वाला है, लेक्सरेट होने वाला है तो इंडो पाक, इंडो चाइना, इंडो रशिया ये सारे मैं रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ लेता हूँ अगर इससे रिलेटेड टॉपिक आ गया। तो हम्म मेरे को लगा कि इतना टेक्निकल जाना या फिर इतना ज़्यादा पढ़ने से chaos ही इस मच टाइम पे जाएगा माइंड सोचना का। हाँ, थोड़ा कि आप वही एसएसबी रहेगा बोर्ड के अंदर आके भी पढ़ रहे हो तो वो मतलब माइंड को आप ओवर स्ट्रेस कर रहे हो उस चीज़ के लिए। बट हम्म स्टिल उसने परफ़ॉर्म तो किया ही था मतलब वो पढ़ रहा था तो उस हिसाब से उसने थोड़ा परफ़ॉर्म किया, लेक्चरेट में भी उसने अच्छा किया था। एंड बेसिकली इंटरव्यू एंड साइक टेस्ट का तो पता नहीं मतलब वो साइक टेस्ट का भी प्रेप करके आया था कि उसने कुछ टीएटीज़ वगैरह प्रिपेयर कर रखे थे एंड एसआरटीज़ उसने कुछ अप्रॉक्सिमेटली 60 एसआरटीज़ में से उसने कुछ 20 टू 30 एसआरटीज़ पहले ही टैकल किए हुए थे कि कुछ स्टैंडर्ड हम्म सिचुएशंस जो थी कि अगर चोरी हो जाती है या ये इंटर कास्ट मैरिज ये सब वो पहले सिचुएशंस वो टैकल करके आया था एंड एक और तो बाकी वो कह रहा था उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट तो अच्छा गया, इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था। एंड हम्म जीटीओ में उसने मतलब ग्रुप प्लानिंग मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज में भी ठीक-ठाक इनपुट्स दिए ही थे। हम्म इट्स ऑल अबाउट कि आपका अगर कोई कोई टास्क अगर अच्छा नहीं भी जा रहा तो उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है सामने वाला जो टास्क आ रहा है उसको फटाफट करो उस पे अपना 100% दो एंड देन कीप हुँ, ऑन मूविंग सो मूव ऑन इज द आई थिंक मूव ऑन इज द अल्टीमेट गोल ओवर हियर कि अगर कुछ अच्छा नहीं गया होगा तो उस पे आप कुछ कर नहीं सकते हो वो पास्ट हो गया ऑलरेडी आगे यस वाली सर। चीजों पे फोकस रखो एंड देन हाउ यू गो राइट हुँ, नक्षत्र so Nakshatra it's been really great talking to you and congratulations to you once again I hope you'll definitely become one of the greatest officers in यस Indian सर। Army, Navy, or Air Force, and make your हुँ, country proud, make your parents proud. That's how you यस go, सर। right? थैंक यू So अलॉट सर। Nakshatra, thank हुँ, you so much. Jai Hind. जय हिंद सर। So students और aspirants जिन्होंने भी आपने ये इंटरव्यू देखा नक्षत्र के साथ आई होप आपको इसमें से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपको आपके एग्जामिनेशन और आपके जो है आने वाले एसएसबीज में आपको हेल्प करे व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज दैट यू ऑलवेज नीड टू स्टे पॉजिटिव
whenever or whatever may happen. And what you need to make sure is like कि SSBs हो या एग्जामिनेशन हो, रिटन एग्जामिनेशन हो या फिजिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल एग्जामिनेशन हो, आपको ये इंश्योर रखना है कि आप हमेशा पॉजिटिव हैं, एक अच्छी सोच के साथ आप एग्जाम दे रहे हैं, being it a plan B or being it a plan A. What you need to ensure is that you are giving your best in everything. Okay. And also regarding NDA, there is a good news. There is a very big opportunity which is coming for you to enroll into our particular courses, which is launching on 16th of November. ये बैच लॉन्च हो रहा है, त्रिशूल बैच, तो उसमें आप एनरोल करिए. नाउ देयर इज बिग ऑफर आल्सो गोइंग ऑन, फेस्टिव ऑफर चल रहा है ऑलरेडी. आप अप टू 60% जो है क्लेम कर सकते हैं ऑफर. सो प्लीज आप एक बार डिस्क्रिप्शंस चेक करिए, लिंक्स अवेलेबल है, प्लीज गो एंड एनरोल. And also, major important for NDA students, we are coming up with a big surprise for you. So stay tuned. We'll definitely reveal the surprise with you soon. Wish you all the best. Jai Hind.